Hello friends, Namaskar. I am Dr. Ashisha for Samanvay Briefings. Today's topic is how to deal with President Trump, Pakistan, Bangladesh and China. You know, they are all quite unique and we are surrounded by our neighbors. And to top it now we have another issue to deal with, that is President Trump. So let's start with President Trump. Okay. See, by now everyone knows and understands that Trump is a very unique personality, right? And some of his attributes are also well known. He has a very high ego, that is number one. He is rash, that is number two. And third is that he is also eccentric, which he thinks as his intelligence or his smartness. Okay. So, how do we deal with such a person who says something on Monday and forgets on Wednesday very conveniently? Right? So, the first and foremost, and it doesn't apply only to President Trump but with any person who is rash and who is impulsive, who has ego. So, the first thing that one should remember is to not to react with any such individual, be it President Trump or be it anyone else. So, it's a general statement. We are not speaking anything against anyone. Okay. The second thing is, don't be emotional. I repeat, and I am saying it very loudly. First, don't react, and second, don't be emotional. Because if you react with all your emotions, you are certainly going to play in the hands of anyone, and also you are going to incur damages that will take a lot of time to get repaired. Okay. In the case of President Trump, if you react, that is emotionally, keeping your nationalist fervor over and above your, what is in Hindi called as विवेक के ऊपर यदि आप इमोशनली होके ट्रम्प को भला बुरा कहेंगे या गाली देंगे, नॉट लिटरली, आई मीन इन अ सिंबॉलिक सेंस, so Trump will actually enjoy it because he wants such people. आपने देखा होगा what he did with Zelensky. In few days Zelensky was back on track. So Trump wants to challenge people, and Trump also likes people who are bold, who are brave. इसमें थोड़ा सा थोड़ी सा गुंडागिर्दी तो नहीं कहना चाहिए, पर थोड़ा सा दबंग, जो लीडर दबंग रहते हैं ना, वो ट्रम्प को पसंद है. वो ट्रम्प को डरपोक और इस टाइप के लोग नहीं पसंद है. सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट व्हेन डीलिंग विद प्रेसिडेंट ट्रम्प. एज आई सेड, डोंट रिएक्ट एंड डोंट बी इमोशनल. What Trump understands is also very well known. He likes flattery. He is totally business minded, and he also likes gifts. Therefore, a better way to deal with President Trump will be not overdoing yourself with your fast emotional reactions, but replace it by some flattery, and also talk in terms of business while presenting him with some gifts. Just to remind you, the Qatar royal family gifted him a $400 million aircraft. The Saudis might have also given him substantial, and so might be the case with UAE as well as Turkey, with all this. This Middle East countries, they know how to deal with Trump. Okay.
We'll talk on this Trump's visit to Middle East also in our later podcast. Let us now restrict ourselves to our this topic. So, I think we have made it pretty clear how to deal with Trump. We'll come back again to President Trump after we finish up with Pakistan, Bangladesh, and China. Our last end of this video will be again talking about President Trump. So please watch till the end. It's very interesting. Now let's talk about Pakistan. See, Pakistan is nothing but a laboratory of China to test its weapons. Right? Because China doesn't fight on its own. It needs someone who can fight on its behalf, where its weapons and all technology or software or whatever you say can be tested. Right? And who can be a better country than Pakistan? Because Pakistan is such a foolish country, and I think it's the only country in the world who keep the generals of Pakistan's army, who keep their own interest over and above national interest. उनको अपने देश की कोई चिंता नहीं है, उनको अपने देश में रहने वाले नागरिकों की कोई चिंता नहीं है. दे आर कंसर्न ओनली अबाउट देयर ओन वेलफेयर. हर आर्मी जनरल रिटायरमेंट के बाद इतना पैसा कमा लेता है कि वह किसी भी यूरोपियन या अमेरिकन कंट्री में जाके वो क्या उसकी 7 पीढ़ियाँ बड़े आराम से खाती पीती है, रहती है और ऐश करती है. और ये उनका एक पैटर्न है. दिस इज़ अ पैटर्न. सो चाइना को एक कंट्री मिल जाता है जो उसके बिहाफ पे लड़ाई करेगा, जहाँ पे उसके वेपन्स टेस्ट हो जाते हैं, और पाकिस्तान के जनरल्स को पावर में रहने का एक बहाना मिल जाता है, क्योंकि इससे बिकॉज ऑफ दिस दे कैन शो टू देयर सिटीजन्स दैट यदि हम नहीं रहे तो भारत खा जाएगा आपको. दैट इज़ व्हाट दिस इज, दैट इज़ द नैरेटिव. अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ रिसेंट में, उसमें भी यही नैरेटिव सेट किया गया कि वो तो हम हैं जो आपको बचा के रखे हैं. यदि हम नहीं हो और ये केवल शहबाज की गवर्नमेंट हो, और फॉर दैट मैटर एनी अदर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो देश को संभाल नहीं पाएगी. भारत आपको खा जाएगा मिलिट्रीली. इसलिए आर्मी ज़रूरी है. इसलिए आर्मी को आपको पूरे पावर देना चाहिए. और ये मुल्ला आसिफ मनीर तो चूँकि रिटायर हो रहा है अगले 2-5-6 महीने में, तो इसको तो अपना एक्सटेंशन भी चाहिए था. तो ये सारा ड्रामा जो है उस कारण से हुआ. एक और विशेष बात जो पाकिस्तान की यूनिक है कि इट्स अ टोटली रॉक कंट्री. डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग that is civil or rational from Pakistan. Let us be very clear on that. It has high rate of illiteracy, it has high rate of unemployment, and it has religious extremism. ये 3 फैक्टर, all these 3 फैक्टर जहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ पर that nation will be a rogue nation, right? वहाँ के जितने भी अच्छे बंदे हैं जिनमें थोड़ी अकल थी, दे हैव गॉन आउटसाइड. दे हैव आइदर सेटल्ड इन अमेरिका और इन यूरोप. पाकिस्तान में अब वही लॉट रह गया है, या तो आर्मी या फिर ये जो इलिटरेट अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं ये, और कुछ हो सकता है मीडिया वाले या अपने जिनकी दुकान वहीं पे चलती है, राइट. इस टाइप से बाकी जो स्किल्ड जो लेबर फोर्स मानी जाती है, जो फैक्ट्रियों में काम करती है या जो आईटी सेक्टर में जो काम करती है, वो सब धीरे धीरे वहाँ से निकल गए. तो प्रश्न ये उठता है, द क्वेश्चन दैट अराइजेस, व्हाट इज गुड अबाउट पाकिस्तान? अनफॉर्चुनेटली देयर इज नथिंग गुड अबाउट पाकिस्तान. टू मी आई डोंट फाइंड अ सिंगल रीजन व्हाई एंड हाउ पाकिस्तान कैन बी टर्म्ड एज अ गुड नेशन. ठीक है, उनके वहाँ पे दे हैव some of the individuals or some people, they have certain attributes, right? But as a nation, we are talking about as a nation, and we are not talking about as an individual. So as a nation,
there is nothing that you can boast about Pakistan. So how do you deal with Pakistan? ऐसा नेशन जिसे अपनी चिंता नहीं है, जो कि एक रॉग नेशन है, उससे आप कैसे डील करेंगे? उससे डील करने का इसे अच्छे से समझिए. प्लीज़ लिसन इट वेरी केयरफुली. टू डील विथ सच अ कंट्री यू कांट बी रैश and you can't react, right? You have to crush it gradually, not only economically but also otherwise through kinetic and non-kinetic, but never make a thing so big that it retaliates in a very irrational manner, right? बिकॉज जो देश रॉक नेशन है और जहाँ पे मुल्लाओं और आर्मी का गठबंधन है, सो वी हैव टू बी केयरफुल while dealing with Pakistan. Also note that Pakistan is getting weaker economically by the day. और वहाँ पर उनके इंटरनल फ्रिक्शंस भी चल रहे हैं उनके प्रोविंसेस में, वेदर इट इज़ बलूचिस्तान, वेदर इट इज़ खैबर पख्तून, और वेदर इट्स सिंध एंड अदर प्रोविंसेस, राइट? इट्स गोइंग डाउन by the day. So let us not play in the hands of Pakistan. ठीक है, हमने उनको अच्छा सबक सिखाया, which is good. सबक सिखाना भी ज़रूरी होता है. So let us keep them guessing कि how will India react. हमें एक जैसा बर्ताव नहीं करना है. कभी कर दिया, कभी नहीं किया, और एस्केलेशन को इतना नहीं जाने देना है कि दे बिकम अनकंट्रोल्ड. तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो इस बार का जो सीज फायर हुआ था, मेरे हिसाब से वो अच्छा हुआ था. ये बात अलग है कि एक आध दिन यदि और चल जाता, पर हमें वी कांट से व्हाट कुड हैव हैपेंड. वो कुड हैव जो है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. सो लेट्स नॉट टॉक ओवर दैट. अब तीसरा इम्पोर्टेंट देश जो है, रादर दूसरा जो इम्पोर्टेंट देश है, दैट इज़ बांग्लादेश. बांग्लादेश का किस्सा भी मोर और लेस इज लाइक पाकिस्तान. ओके, इसके साथ भी हमें वैसा ही करना है जैसे पाकिस्तान के साथ करना. वी हैव टू अप्लाई बोथ काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मेजर्स. जैसे पाकिस्तान के साथ हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी किया है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू कीप दैट नेशन इन चेक. ओके, वैसे ही हमें बांग्लादेश की भी जो नस है या गर्दन जो है उसको पकड़ के रखनी है. तो अभी जो इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ सुपरफास्ट कॉरिडोर फ्रॉम शिलोंग टू सिलचर, जो कि नीचे जाके सितवे से मिलता है, राइट? ऑल दिस बाय रोड. और वहीं कलकत्ता से सितवे जो है एक समुद्र का रूट बनेगा. ओके, तो ऊपर से शिलोंग से सिलचर आए, नीचे सितवे तक आए, और फिर सितवे से समुद्र के द्वारा कलकत्ता आ गए, या कलकत्ता से सितवे होते हुए शिलोंग पहुंच गए. तो जो आप पहले जो रास्ता था वो जाता था ठीक है ना. तो वो चिकन नेक को हमने बाईपास कर दिया और ये हम अल्टरनेट रूट हमारा बन जाएगा. इस प्रकार से और भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हम डेवलप कर सकते हैं, राइट? तो ये तो रहा बांग्लादेश का हल. इसको आइसोलेट करना पड़ेगा बांग्लादेश को थ्रू बाय मेकिंग इंफ्रा एंड बाय अडॉप्टिंग काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक. मैं काइनेटिक भी बोल रहा हूँ, कभी कभी काइनेटिक एक्शन भी करना पड़ेगा. चलिए अब हम आते हैं फाइनली चाइना के लिए. हाउ टू हैंडल चाइना.
सी पाकिस्तान और चाइना दोनों इस समय दे आर गोइंग थ्रू अ हाई इकोनॉमिकल टर्मोइल। जब जैसे शेर की गिरफ्त में आके हिरण फड़फड़ाता है ना, तो चाइना की स्थिति बिल्कुल वैसी, इट्स डेस्परेट। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, चाइना इज डेस्परेट, प्लीज रिमेंबर माई वर्ड्स। और इस बार जो उसने पाकिस्तान की मदद से इंडिया पर पहले टेररिस्ट अटैक करवाया और बाद में उसका पूरा सपोर्ट किया, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। एक रीज़न तो जैसा सबको मालूम है कि वो ट्रेड वार उसका चल रहा है अमेरिका से, और वो नहीं चाहता था कि भारत अमेरिका से पहले समझौता कर ले और आगे निकल जाए। तो इट कैन नॉट अलाउ इंडिया टू डेवलप, राइट। और उसमें चाइना की गलती नहीं है, कोई भी आपका नेबर यदि स्ट्रांग है तो वो ऐसे ही करेगा। पर जो दूसरा रीज़न है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। चाइना क्योंकि अपना इकोनॉमी उसकी सफ़र कर रही है, तो उसके लिए इस समय सबसे अच्छा रेवेन्यू जनरेशन करने का इजी तरीका क्या है? इजी तरीका है अपने वेपन्स एक्सपोर्ट करने का। देयर आर मेनी कंट्रीज हु वांट्स टू बाय वेपन्स बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी, एंड चाइना इज़ अ बिग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेनी फाइटर प्लेन्स, J-10 है, J-17 है, J-35 है, उनके पास हेलीकॉप्टर भी है, उनके पास टैंक्स भी है, उनके पास मिसाइल भी है, बहुत सारी चीज़ें। सो इट कैन एक्सपोर्ट। तो चाइना ये चाह रहा था कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान कुड हैव शोन अ सुपीरियरिटी ऑफ चाइनीज़ वेपन्स ओवर इंडियंस, ठीक है। परंतु ये उनका पैतरा फेल हो गया, right, because Indian weapons came out to be more superior than Chinese weapons, और उनका कोई भी हमारे इधर घुस ही नहीं पाया, जबकि हमने उनके कई एयरबेस गिरा दिए। तो अब क्या करें, अब चाइना और पाकिस्तान क्या करें? तो उन्होंने एक पहले से ही सेट नैरेटिव तैयार करके रखा था, फेक नैरेटिव, फेक कैंपेन विच वॉज रिलीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और ये केवल ISI और चाइना ही कर सकते हैं, जो पैसे के दम पे उन्होंने सारे मीडिया खरीद लिए थे। हम इस पे एक बहुत जल्दी नया पॉडकास्ट बनाने वाले हैं कि हाउ पाकिस्तान एंड चाइना हैज़ क्रिएटेड अ फेक नैरेटिव। तो ये उनका कैंपेन पहले से तैयार था, इसलिए आपने देखा होगा कि इंडिया क्यों इस मामले में पीछे रह गया, जबकि पाकिस्तान और चाइना का जो नैरेटिव है वो चल गया और सब वर्ल्ड ने उसको खरीद लिया। क्योंकि उनका जैसे ही वो हारने लगे, उन्होंने अपने नैरेटिव को, फेक नैरेटिव को सेट करना शुरू कर दिया, बिकॉज द मेन पर्पस ऑफ चाइना वॉज टू सेल इट्स वेपन्स, एक्सपोर्ट इट्स वेपन। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी था, जबकि हमारे इसमें ऐसा कुछ नहीं था, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। तो उनका फेक नैरेटिव चल गया, एंड फॉर सम टाइम द वर्ल्ड ओपिनियन वॉज दैट पाकिस्तान हैज़ बीटन इंडिया। और इसलिए ये मोदी जी ने जो MP 7 दल भेजे है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। मेरी मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाइए, भले उसमें आपको 10 करोड़ 100 करोड़ खर्चा करना पड़े, पर उसको पूरे वर्ल्ड के जितनी भी चैनल से सब पे दिखलाइए। एक 2-5 मिनट का एक डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, उस पर सब पे दिखलाइए कि हाउ इंडिया हैज़ बीटन पाकिस्तान। तो ये रही चाइना की मतलब नीयत, और जिसे कहते हैं उसके ऑब्जेक्टिव। तो उसके ऑब्जेक्टिव में अभी तक यदि देखा जाए तो पाकिस्तान भी सक्सेस हुआ है और चाइना भी सक्सेस हुआ है। बोथ हैव गेन देयर ऑब्जेक्टिव। इधर मुल्ला उसको भी, आसिफ को भी एक्सटेंशन मिल जाएगा। इधर चाइना के भले उन्होंने फेक नैरेटिव सेट किया हो, पर उनका एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत तो चल ही निकलेगा, राइट। तो ये बात समझ में आ गई। तो चाइना से डील करने के लिए हमको बहुत स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। अगेन वी कांट रिएक्ट इमोशनली और रैशली, बहुत सोच समझ के हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स देखिए ये ऐसे ही काम करती है। इसमें हर नेशन अपना इंटरेस्ट जो है ऊपर रखता है, तो आपको उसकी काट निकालनी पड़ेगी, राइट। चाइना के बारे में हम थोड़ा सा और बाद में एक पॉडकास्ट बना के और अलग से करेंगे। अब मैं वापस आता हूँ ट्रम्प के इधर। देखिए, ट्रम्प
हालांकि एसेंट्रिक है पर बहुत स्मार्ट भी है। देखिए ट्रम्प का और अमेरिका का भी मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यह है कि चाइना को डाउन करना, विच दे थिंक दैट चाइना कैन चैलेंज देयर सुप्रीमेसी। ओके, इस बारे में अमेरिका को कोई गलतफहमी नहीं है कि उसका दुश्मन नंबर 1 कौन है, वो चाइना है। उसको कौन चैलेंज कर सकता है? चाइना चैलेंज कर सकता है। चाइना से फाइट करने में अमेरिका की कौन मदद कर सकता है? इंडिया कर सकता है। पर क्या इंडिया ऐसा कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या इंडिया अमेरिका के कहने पर चाइना से लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। इसके अलावा इंडिया की रशिया से अच्छी दोस्ती है, मोदी साहब और पुतिन के बहुत अच्छे संबंध है। तो अब ट्रम्प साहब क्या करेंगे? आप ट्रम्प की जगह होते तो आप क्या करते? बताइए। आप पहला काम ये करते कि आप इंडिया को रशिया से अलग करना चाहते, उसको अपनी तरफ खींचते। और दूसरा, ये इंडिया जो रिलेक्टेंट है, और दूसरा जो इंडिया जो रिलेक्टेंस है, उसकी रिलेक्टेंस को कम करना, सो दैट इंडिया ऑटोमेटिकली कम्स टू ऑन अमेरिकन साइड। तो इसके लिए ट्रम्प महाशय ने क्या किया, मतलब आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? आप ये करते कि अमेरिका को खूब डरा देते। ठीक है, जो भी रीज़न हो उससे आप डराते, ताकि इंडिया इतना घबरा जाए कि वो दौड़ता हुआ अमेरिका की शरण में जाए या प्रेसिडेंट ट्रम्प की शरण में जाए। सो दिस इज़ व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज़ डन। उन्होंने वो पाकिस्तान को अभी दाना डाल रहे हैं, राइट। उन्होंने सीज़ फायर करा दिया। अब देखिए सीज़ फायर कराया तो एक तरीके से अच्छा ही हुआ, राइट, ठीक। मैंने इसके पहले वाले पॉडकास्ट में बोला था कि ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प मोदी जी को टीज कर रहा है। वो दिखाना चाहते हैं, वो सबको बताना चाहते हैं कि ये मैंने कराया है, और ये बात सही है। ही वॉज एक्चुअली टीजिंग मोदी जी कि देखो ये सीज़ फायर मैंने कराया है। कहने का मतलब कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा हूँ, राइट। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने सऊदी अरब में जाके जो एप्पल के टीम कुक है, CEO, उसको बोल दिया कि आप व्हाट आर यू डूइंग इन इंडिया, व्हाई आर यू मैन्युफैक्चरिंग एप्पल्स फोन इन इंडिया। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प इज शोइंग हिज डिस्प्लेजर टूवर्ड्स इंडिया। फिर ट्रेड में भी उन्होंने अभी तक कोई समझौता नहीं किया है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प इज क्रिएटिंग फियर इन द माइंड ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एवरीवन। और इसके पीछे उनका सीधा सा मकसद ये है कि इंडिया जो है रशिया का दामन छोड़े और अमेरिका के साथ खड़े हो जाए चाइना के साथ लड़ने के लिए। सो अगेन दैट्स व्हाई आई सेड, मैंने शुरू में बोला था कि डोंट रिएक्ट एंड डोंट प्ले इमोशनली विद प्रेसिडेंट ट्रम्प। लेट हिम स्पीक वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू। लेट अस कैलकुलेट आवर ओन mathematics properly and let us make a strategic long term interest of what we want and how we can achieve it. We don't want to, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें साथ जाइए या इसके साथ जाइए। देखिए जियो पॉलिटिक्स में देर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स। वी हैव, जैसा सर्कमस्टांसेस रहते हैं उस हिसाब से हमें अपना, जब अमेरिका ने अपनी इतने दशकों पुरानी नीति छोड़ दी है और नाटो कंट्रीज़ को डिच कर रहा है एक तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ को, तो हम कहाँ लगते हैं। सो यू हैव, भाई आपको डायनामिक डिप्लोमेसी अपनानी पड़ेगी। आप जियो पॉलिटिक्स में आप इमोशनली होके खेल ही नहीं सकते। यदि आप इमोशंस के चक्कर में फंस गए तो आपका बंटा ठार होना जरूरी है। You can't be an emotional animal in geopolitics. Please keep that in mind always. You have to be very cool-headed and you have to understand the objective of the other person or the other nation.
ठीक है. विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव यू कैंट फॉर्मुलेट योर ओन रिस्पॉन्स. इसलिए यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव of the other person, whether it is Pakistan, whether it is Bangladesh, whether it is China, or whether it is President Trump. Right? Once you understand the objective, it becomes very clear to you how to formulate your strategy and response. So friends, I hope after listening to this, आपका जो गुस्सा था ट्रम्प के लिए वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. तो इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है. चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या चाइना हो, सबके साथ हमें आराम के साथ खेलना है, बिना अपना आपा खोए या इमोशनल इम्बैलेंस होकर. पाकिस्तान के साथ भी हमारा जो रिएक्शन रहा है, एक देयर वॉज अ वेरी ह्यूज what you say overpowering emotion in the country that everyone felt, right? मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो जो हमने किया वो सही किया गलत किया, क्या आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट देयर वाज अ वेरी ह्यूज एक्सपेक्टेशन एज वेल एज overpowering इमोशनल कंटेंट अक्रॉस द कंट्री, विच इज़ ट्रू. जो होना भी चाहिए था, उसमें कोई गलत नहीं है. अगर डर के या चुपचाप बैठ के भी कभी कभी शस्त्र भी हाथ में उठाना पड़ता है और जवाब भी देना पड़ता है, तो वो हमने किया उसमें. दैट्स अनदर स्टोरी. बट बाय एंड लार्ज लेट्स कीप आवर हेड कूल्स एंड ड्रॉ अ स्ट्रेटेजी, अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फॉर स्पेशली फॉर दिस पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना. और ट्रम्प के साथ तो वी कैन प्ले प्रेटी वेल, राइट. सिर्फ उसके देखिए, ट्रम्प कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है. ही इज़ वेरी स्मार्ट पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, राइट. एंड जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, दे प्ले अ रोल एज पर द दे हैव एवरीथिंग, लाइक उन्होंने सारा अपना कैलकुलेशन करके रखा है. दे प्ले लॉट ऑफ वार गेम्स एंड दे डू लॉट ऑफ गेम थ्योरी एंड ऑल दैट. वो उनको मालूम है कैसे बैलेंस करना है, किसको कहाँ लाना है, किसको क्या करना है. एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो ही इज स्मार्टर दैन बाइडेन एंड अदर प्रेसिडेंट्स. सो ही विल प्ले हिज कार्ड्स प्रेटी वेल. और अल्टीमेटली इनका एम जो है इंडिया को अपने खेल में मिलाने का है. इंडिया जाता है, नहीं जाता है, कब जाता है, क्यों जाता है, कैसे जाता है, ये हमें और देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में. बट दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग बाय एंड लार्ज. तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं. यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. वी नीड more people like you as our loyal subscribers. Okay? Or always watch till end, because most of our summary और जो concluding part रहता है वो end में ही आता है. Okay? So this is Dr. Ashisha signing off for Saman Web Briefings. Thank you very much for watching. Jai Hind.